Now last time we have taken electromagnetic induction numericals on that. Now we'll be taking one more phenomena here, that is self induction. काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेल्फ इंडक्शन. The phenomena of electromagnetic induction. The phenomena of electromagnetic induction in which on changing the current in a coil, on changing the current in a coil, and opposing induced EMF is set up, opposing induced EMF is set up in the same vary coil, is called the same vary coil, VERY, same vary coil is called self induction, is called self induction. Next line में it is also known as back EMF. It is also known as back EMF. Now what happens? This is a coil and a battery and a key is connected to this coil. This one is key and this is the cell. Just now the current in the circuit is zero. इस समय सर्किट में जो करंट है वो जीरो है. Now when we switch on the key, then current in the circuit changes. Current changes from 0 to I value. If I current is flowing in this coil, so as soon as you will switch on the key, for a moment the current in the circuit will change. After that the current will acquire the constant value because it is a DC current. So after some time it will acquire the constant current. ये DC करंट हमने अप्लाई की है. DC करंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड. ये DC करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट. DC करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो 0 से 5 एम्पियर तक आने में करंट विल टेक सम टाइम, मे बी इट इन मिली सेकेंड टाइम, बट ड्यूरिंग दैट टाइम द करंट विल बी चेंजिंग. So during switch on,
the current changes from 0 to I. If the current changes, then magnetic field पहले 0 रही होगी और बाद में ये B हो जाएगी, and this B will be equal to mu naught n I. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? म्यू नॉट एन आई. दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट एन आई. स्विच ऑन के टाइम पे करंट चेंज हुई. इफ करंट चेंजेस देन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस. Magnetic flux will change from 0 to phi, and that phi will be equal to B into A. And when flux changes, EMF is induced. So this phenomena of production of EMF in a coil, when current in the same vary coil changes, that is known as self-induction. See again what is happening. ये solenoid है, let us suppose a coil है, and we have connected a cell to this. In this coil, constant current will be flowing, but that constant, when we switch on the key, just when switch on the key, for few millisecond the current will be rising. यहाँ पे करंट जो है इस वैल्यू को अटेन करने में it will take some time. जैसे यहाँ पे देखें हम कि ये पूरा ग्राफ देखते हैं, ये करंट है, ये टाइम है. As soon as you will switch on, current will increase from 0 to, let us suppose 5 एम्पियर करंट है, तो 5 एम्पियर तक आने में इसको कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी. तो ड्यूरिंग द टाइम करंट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज. इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस देन फ्लक्स विल चेंज, एंड व्हेन फ्लक्स विल चेंज ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. तो जिस कॉइल में तुमने करंट चेंज किया है, द कॉइल इन विच यू हैव चेंज द करंट, इन द सेम कॉइल दिस ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. डिफाइन करने को आ जाता है, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन. सो व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्शन? दिस इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल when current in the same vary coil changes. जिस कॉइल में तुमने करंट चेंज की है उसी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. नाउ मेन करंट का डायरेक्शन ये होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव. This is the direction of main current. Induced current का डायरेक्शन अपोजिट में होगा. नाउ कैसे होगा? दैट विल बी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग स्विच ऑन मेन करंट एंड इंड्यूस करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. देखो क्या हो रहा है यहाँ पर. यू सी व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड. इस ईएमएफ इंड्यूस का कॉज देखो. कॉज है करंट का राइज होना. करंट का राइज होना कॉज है. इसको राइज होने से रोकेगी इंड्यूस करंट, तो वो मेन करंट के अपोजिट फ्लो करेगी. तो ड्यूरिंग स्विच ऑन अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो ड्यूरिंग स्विच ऑन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी अपोजिट टू द मेन करंट. सो राइट डाउन वन लाइन. ये पॉइंट है. ड्यूरिंग स्विच ऑन
the direction of induced current is opposite to main current. स्विच ऑन के टाइम पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट होगा. अब जरा स्विच ऑफ के टाइम पे देखो, दिस इज योर कॉइल एंड यू स्विच ऑफ द सर्किट. सर्किट को स्विच ऑफ कर रहे हो तुम. आफ्टर सर्टेन टाइम यू स्विच ऑफ द सर्किट. तो करंट जो है, करंट I से जीरो वैल्यू आएगी और I से जीरो आने में इसको टाइम लगेगा. ये कांस्टेंट करंट थी और जीरो आने में इसको टाइम लगेगा. उस टाइम के ड्यूरेशन में करंट चेंजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड B से जीरो चेंज होगी. फ्लक्स फाई से जीरो चेंज होगा एंड फ्लक्स अगर चेंज होगा तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो दिस फिनोमिना विल बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. बीच के टाइम पे नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. बीच के ड्यूरेशन में जब तुमने स्विच ऑन किया और कुछ देर के बाद तुमने जब स्विच ऑफ किया, व्हेन यू स्विच ऑन द सर्किट फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स एंड व्हेन यू स्विच ऑफ द सर्किट देन फॉर फ्यू मिली सेकेंड, दिस फिनोमिना विल बी ऑब्जर्व्ड. इंड्यूस्ड ईएमएफ यू विल बी गेटिंग. अब इसमें डायरेक्शन देखते हैं. इस बार भी मेन करंट का यही डायरेक्शन है, पॉजिटिव से निगेटिव. बट दिस टाइम दिस मेन करंट इज डिक्रीजिंग. इस बार जो मेन करंट है वो डिक्रीज हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, इंड्यूस करंट इसको डिक्रीज होने से रोकेगी, तो वो खुद इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ड्यूरिंग स्विच ऑफ. स्विच ऑफ के टाइम पे इंड्यूस्ड एंड मेन करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. During switch off, the direction of induced current will be same as direction of main current. स्विच ऑफ के टाइम पे मेन करंट एंड इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में. स्विच ऑन के टाइम पे मेन करंट एंड इंड्यूस करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. पार्डन? Sir? Yes. So can you explain the graph again? That one you have told. Graph. Yes. Now actually what happens, suppose in the circuit this DC current is 5 ampere. This is your time, this is current, this is 5 ampere. So when you will switch on the circuit, जब सर्किट को स्विच ऑन करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि करंट बिल्कुल तुरंत ही 5 एम्पियर हो जाए जंप करके. करंट विल टेक सम टाइम टू अटेन 5 एम्पियर. दैट टाइम विल बी वेरी स्मॉल. दैट विल बी 0.001 सेकेंड, 0.005 सेकेंड, इस तरह का टाइम होगा. लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम करंट विल बी चेंजिंग. तो क्या होगा, जब स्विच ऑन करोगे तो करंट पहले राइज करेगी
और जब 5 एम्पियर हो जाएगी जो सेल से फ्लो करनी है, देन इट विल बिकम कांस्टेंट। ये हो गई डीसी करंट। स्टार्टिंग में स्विच ऑन के टाइम पे ये इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ये टाइम बहुत स्मॉल होता है। तो जिस समय ये करंट चेंज हो रही है उस समय सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। नाउ इसके मैथमेटिकल पार्ट में वी आर कमिंग। सपोज यू हैव n number of turns in the coil, number of turns in coil, and phi be the flux linked with one turn, and I be the current through the coil. ये जो कॉइल है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और हर टर्न से जो फ्लक्स लिंक है वो फाई है। इसके एक लूप से जो फ्लक्स लिंक है वो फाई है। सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं n। सो टोटल फ्लक्स will be directly proportional to current। ये जो सोलोनाइड से कॉइल से जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा। देखो कैसे डिपेंड करेगा, हम तुम्हें दिखाते हैं। जो फ्लक्स होता है वो B इंटू ए होता है, या N टाइम्स B इंटू ए, और मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड की होती है म्यू नॉट NI। तो जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराओगे सोलोनाइड में उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो टोटल फ्लक्स विल डिपेंड अपॉन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच टोटल फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सोलोनाइड? इस सोलोनाइड से टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा सर? N5। एक लूप से 5 फ्लक्स लिंक है और n लूप है यहां पर, तो टोटल फ्लक्स हो गया N5। 5 is the flux linked with one loop and there are total n number of turns, तो टोटल फ्लक्स जो लिंक हुआ वो N5 हुआ, and that is depending upon the current in the circuit I। So this N5 will be equal to L into I। L is constant here and this is known as coefficient of self induction। इसको बोलते हैं coefficient of self induction। This will be used in coefficient of self induction, L will be used in next chapter also। सो N5 प्रोपोर्शनल टू I, तो N5 जो है Li के बराबर हो गया। L इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जब भी तुम्हारे पास कोई कॉइल होगी उसके पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इसकी SI यूनिट जो होती है हेनरी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की SI यूनिट हेनरी। देन तुम्हारे पास क्वेश्चन ये होता है, डिफाइन सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो यहीं पे क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना है। नाउ इस फॉर्मूले से L को सब्जेक्ट बनाओ, N फाई इज इक्वल टू एल आई। L को सब्जेक्ट बना लो, N फाई अपॉन आई। एंड इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर देन L विल बी इक्वल टू N फाई। अगर इसको 1 ले लो डिनोमिनेटर को, तो ये N फाई बचेगा और N फाई कहलाता है टोटल फ्लक्स। और अब यहां से आराम से ये डिफाइन हो जाएगा। You can easily define coefficient of self induction. What is coefficient of self induction? Coefficient of self induction is total flux. And when total flux, when current in the coil is how much? 1 ampere. अगर इस coil में 1 ampere current flow कराओ, तो जितना total flux इससे link होगा, that will be known as coefficient of self inductance of the coil. So write down definition that you will be writing. Coefficient of self induction is equal to total flux linked with the coil. Total flux linked with the coil when unit current flows through same vary coil. Coefficient of self induction is equal to total flux linked with the coil when unit current flows through the same coil. If you pass 1 ampere current through this coil, then whatever total flux is linked, that will be known as coefficient of self induction of that coil. सर Yes. सर हेनरी को हम लोग वेबर पर एम्पियर लिख सकते हैं?